Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to Learn Correct English. So I'm back with another episode of the rules that we follow in the English language. So there are three golden rules in the English language in the case of possessive case or where you say that we put an apostrophe and then s and this shows the possession of anything or the belonging of anything to a person or a subject. So, when it comes to such cases, we would be dealing with three rules, and you have to learn these by heart. So, before starting this video, I would request you people to subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so that you may watch all the coming episodes of different rules or on idioms or on vocabulary for free. So, let us start today's topic. So, the very first of the golden rules we have is the use of the possessive or genitive case, and they say that it should be confined to the following. यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो possessive case हमारे पास आ जाते हैं जिनको हम genitive cases भी कहते हैं, सो इनको आपने कन्फाइन करना है, मतलब लिमिटेड कर देना है ये जो भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग. ठीक है. So the number one point we have is names of living beings and personified objects. इनके साथ आप पोजीशन शो कर सकते हैं. Like the leader's bodyguards. Here we have this leader as a living being. He is a human being, and that is why we have put an apostrophe and s over here to show that these bodyguards belong to this leader. So we have here the lion's mane, and this lion basically tells us that it's a living being, an animal, and its mane is indicated over here. So we are here basically personifying the nature, the mother nature. We all say this thing in English literature when we read different pieces of poetry. So this nature's law. So you see how we have personified natures and then we are telling or giving information about the laws of nature. So here we have another example, fortune's favorite. अब आप अगर यहाँ पर देखें, फॉर्चून मतलब लक किसी की, ठीक है, कि हाउ मच फॉर्चुनेट ही इज और लकी ही इज. सो आपने यहाँ पर फॉर्चून को आपने पोजीशन शो कर दी, कोई लिविंग बीइंग आपने उसको बना दिया. पर्सोनिफिकेशन इसी चीज का नाम होती है. इट इज अ लिटरेरी डिवाइस. एंड सोन वी विल बी स्टार्टिंग अनदर सीरीज ऑन द literary side where we would be dealing different types of devices that we use in when we study English literature or any novel or any poem. So the second point we have where we can use possessive case is a few fixed phrases. So in English language we have some type of phrases. कुछ phrases ऐसे हैं इस language में जो fixed हैं, ठीक है. Nobody can challenge them, like why you have put apostrophe s with them. So you have to learn these fixed expressions by heart in order to get away from confusion. So for conscience sake, okay, for conscious sake. So this is a form of fixed expression. For goodness sake, ठीक है. आपने बहुत सी इंग्लिश मूवीज देखी होंगी और इंग्लिश कोई सीरीज या कोई कार्टून्स देखे होंगे, एंड देयर you may witness these type of rules or these type of fixed phrases. At his fingers ends, यहाँ पर आप देखें ये his जो है ये तो लिविंग बीइंग है, ठीक है. और ये फिंगर जो है उसकी बॉडी पार्ट है, मतलब ये ना कोई ह्यूमन बीइंग है ना कोई एनिमल है, बट स्टिल वी यूज दिस फिक्स्ड फ्रेज and it is pertinent. It is of great importance to you people that you have to learn this by heart. You cannot question their making, like why this position is coming at this very end. So out of arm's way, इसी तरह the boats grew. So the number third point we have where we can use these possessive cases is nouns of space. अच्छा, space के में भी जो भी nouns आपके यूज होते हैं या टाइम को शो करने के लिए जो भी nouns शो होते हैं उनके साथ आप ये apostrophe s लगा सकते हैं. लाइक a day's work, ठीक है. अभी इधर उसने बताया कि जी एक दिन का काम, a day's work, a work of a day, ठीक है.
Here you can use apostrophe s, a hand's breadth. यहाँ पर अगर आप ये देखें जो breadth है ये आपको स्पेस बता रही है, तो इसके साथ आप ये यूज कर सकते हैं। इसके जो नाउन है a hand's breadth, मतलब एक हाथ की जो भी फासला है, ठीक है, इन अ ईयर्स टाइम। अब यहाँ पर टाइम क्या, टाइम को कौन इंडिकेट कर रहा है, ये वाला नाउन, तो इसके साथ आप apostrophe s लगा सकते हैं। So you see how these 3 points are very significant. They are of great importance for you people if you want to correct any error. If you are, for example, you face any situation in the examination where you have to correct the sentences and there you have to meet these rules. Once you learn these rules by heart, then there is no need of worry that you would be not getting good marks. So the second golden rule we have is when two nouns in the possessive case are in apposition, the apostrophe with s is added to the last only. मतलब apposition का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि शी मैं लिखूं और आगे मैं लिखूं द गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो शी है, द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर, इस तरह से कोई सेंटेंस बना दूं तो यहाँ शी भी उसी गर्ल को रेफर कर रहा है और द गर्ल भी उसी चीज को रेफर कर रहा है। एक ही मतलब एक ही लड़की को ये दोनों नाउन्स रेफर कर रहे हैं, ठीक है, शी भी ये है और द गर्ल भी ये है। सो व्हेन टू नाउन्स कम इन अ सेंटेंस एंड दे रेफर टू द सेम पर्सन, तो फिर इस फिनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम एपोजिशन कहेंगे। सो उन्होंने कहा है कि जब दो नाउन इस तरह के आ जाएं जो एपोजिशन में हो, मतलब वो दोनों नाउन जो है एक ही बंदे को शो कर रहे हो, तो फिर अपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ आएगा, जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके साथ आएगा। मतलब दिस इज माई अंकल द इंजीनियर्स रूम, अब यहाँ पर ये नहीं होगा दिस इज माई अंकल्स द इंजीनियर्स रूम। अब यहाँ पर उसके जो अंकल हैं वो इंजीनियर हैं, ठीक है, द इंजीनियर भी अंकल के लिए आया है और अंकल भी उसके जो अंकल हैं उनके लिए यूज हुआ ये नाउन। So in such cases, you have to put the apostrophe s with the second noun. All right. Here we have another example. My brother William's watch. अब यहाँ पर देखें, my brother भी एक ही इंसान है और उसका नाम जो है विलियम वो भी उसी इंसान का नाम है। तो ये जो दो नाउन्स हैं ये एक ही बंदे के लिए यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपने apostrophe s किसके साथ लगाना है, you have to put the apostrophe s at the last noun. ठीक हो गया? So this is the second golden rule we have for today. And this is the third rule, third and the last rule we have for today is when one noun is qualified by two possessive nouns, both must have the possessive sign. जब एक noun जो है उसको पोजेसिव नाउन ट्रू पोजेसिव नाउन के साथ क्वालिफाई कर दिया गया है तो दोनों के साथ पोजेसिव साइन आएगा unless joint possession is indicated। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाली है ना चीज, इसको हम लोग इस चीज में नोट करेंगे। जॉइंट पोजेशन इज इंडिकेटेड मतलब आपके पास ये दो नाउन्स हैं द किंग एंड क्वीन, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हमने क्या बताया कि उनका जर्नी, द किंग एंड क्वीन। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, ये हैं तो दो नाउन्स हैं लेकिन इनको हमने टुगेदर लिया क्योंकि द किंग एंड क्वीन इकट्ठे सफर कर रहे हैं और ये हमेशा एक तरह से लिए जाते हैं, मतलब जहां पे भी जाएंगे ये लोग इकट्ठे ही जाएंगे, द किंग एंड क्वीन। सो ये एक ही कंसेप्ट को जाहिर कर रहे हैं, एक ही क्राउन को जाहिर कर रहे हैं, जो भी क्राउन होता है, ठीक है, द किंग एंड क्वीन। सो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपके पास आ रहा है। सो आप किसके साथ लगाएंगे apostrophe s, जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके साथ इंडिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट पोजीशन शो हो रही है, दोनों हैं, दोनों का जर्नी है, सिर्फ क्वीन का जर्नी नहीं है। हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते द किंग्स एंड क्वींस जर्नी, वो तो ये होगा कि फिर किंग कहीं और सफर कर रहे हैं हम तो क्वीन कहीं और सफर कर रही है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इन ऑर्डर टू शो द जॉइंट पोजीशन, जब एक ही कंसेप्ट आ रहा है देन वी हैव टू पुट द apostrophe s विद द लास्ट नाउन। ठीक हो गया, इस अनलेस जॉइंट पोजीशन इज इंडिकेटेड इसका ये मतलब है।
अब अगर हम ये सेकंड एग्जांपल ले लें, इसमें हम देखते हैं हंटले एंड पामर्स बिस्किट। अब ये एक ही कंपनी का नाम है, ये जॉइंट पोजीशन शो हो रही है, दैट इज व्हाई वी हैव पुट apostrophe s विद द लास्ट नाउन। ठीक है, जॉइंट पोजीशन है, इन दोनों के बिस्किट्स हैं, ये एक ही कंपनी है, ठीक है, जिनके ये बिस्किट्स हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम ये कर लें कि लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव बिस्कोनी ओवर हेयर, ठीक है, बिस्कोनी ये कंपनी है बिस्किट की, ठीक है। अब आई डोंट नो कि जी बिस्कोनी जो है वो लू की है, अंडर जो उसके प्रोडक्ट आता है। अगर हम इसको चले ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी सपोज दिस कि एक बिस्कोनी कंपनी है बिस्किट्स की, एक लू है जिसमें आपके प्रिंट्स वगैरह इस तरह के डिफरेंट बिस्किट्स आते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इस तरह से लें कि इन दो ये अलग कंपनी है, इसमें जॉइंट पोजीशन इंडिकेट नहीं हो रही, और लू एक अलग कंपनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ बिस्कोनीज बिस्किट्स एंड लूज बिस्किट्स, ठीक है। अब देखें दोनों की जॉइंट पोजीशन नहीं हो रही, क्योंकि इसका बिजनेसमैन, इसका ओनर और होगा बिस्कोनी का, और लू का बिजनेस ओनर जो भी है वो कोई और होगा। सो उसमें हमने दोनों के एंड पे apostrophe s लगाना है, क्योंकि जॉइंट पोजीशन शो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन वन नाउन इज क्वालिफाइड बाय टू पोजेसिव नाउन्स। अब एक नाउन है यहाँ पर बिस्किट, ठीक है, इसको क्वालिफाई किसने की है, पीछे दो नाउन्स ने, ठीक है। और वो दो नाउन्स जो है उनमें जो है आपकी जॉइंट पोजीशन शो नहीं हो रही, देन यू हैव टू प्लेस apostrophe s दोनों के साथ, देन बोथ मस्ट हैव द पोजेसिव साइन, दोनों के साथ आए, दैट इज वाई, ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह ये है द किंग एंड द क्वीन, या ये हंटलर एंड पामर्स, ये एक ही कंपनी है, एक ही जॉइंट इनका जॉइंट पोजीशन शो हो रही है, ठीक है, एक ही ताल्लुक है इनका, सो देन वी हैव टू पुट द apostrophe s एट द सेकेंड नाउन, ठीक है। So I hope the things are clear to you people, and I am very thankful, very grateful to you people after the overwhelming response from you people at the my last video, over my last video on idioms. And do subscribe, do share, and do learn, as it gives immense happiness to me that you people are putting in efforts in learning English language. So that is all for today, and you have not subscribed, kindly do subscribe. Learn correct English. Thank you so much.